Hello guys and welcome to Manwar Education. So guys, in this video we're going to be solving the reasoning and arithmetic questions from our Maharashtra CET 2026 slot 1 paper. Okay, so those aspirants who are targeting for Maharashtra CET 2027 or 2028, this video is going to be very much helpful to you all. So watch the video till the last guys. And if you are new to the channel, make sure subscribe karo channel ko guys, so you can get the timely updates and the video. Okay, and hit the like button and share the video with all the friends who are preparing for the Maharashtra CET 2027 or 2028. Now before we start guys, for the preparation you can join the Manwar online or the classroom batches. You can contact the team on the given numbers, or you can also visit our websites. So you can say links and you can say details are given in the description box. So kindly go and check the description box. चलिए start करते हैं. Coming to our very first question. So guys, the first question says here, Javed deposited 12,000 rupees at 9% per annum in a bank for some years. कुछ टाइम के लिए guys 9% per annum पे 12,000 Javed deposited the amount, and what he did is and withdrew his interest every year. What he did is उसने guys interest अपना every year you can say at the end of year निकालना start कर लिया. Now we are given at the end of the period he had received a total of 17,400 rupees. So you can say guys, you can say when you maturity is completed, you can say time duration complete हुआ, उसे total कितना rupees मिला? He got rupees 17,400 total overall, not in the end, total उसे इतना rupees मिला. So we have to answer for how many years did he deposit his money. So I guess guys that's a very trick question. बहुत easy question है, but it's a trick question. So dear, trick question is, if we talk about you can say guys rate of interest. Interest का जब हम बात करते हैं, generally bank used to interest compounded. Interest क्या करते हैं guys? Bank used to give interest on the you can say compoundingly. Okay, simple interest is not generally used in the bank. But what the Javed is doing? Javed is doing his thing. He is withdrawing his interest at the end of year. Every year he is taking out interest. So dear, what he will get? Basically he will get interest only on his principal. So I can say जो उसे 17,400 rupees मिला dear, वो कैसे मिला है? क्योंकि से उसे हर year at the end of every year he is getting the same amount of interest. Or what we can conclude from here? We can conclude here from the 17,400, 12,000 was his amount, principal amount that he deposited. So basically he got the interest what? He got a total interest of 5,400. And since वो interest guys at the end of year withdraw कर रहा था, so we can make this question by assuming he was using simple interest tactic, because simple interest is same for every year. And since dear interest कुछ add up ही नहीं कर रहे, so compounding होने का case नहीं बनता. So we will calculate, this is our interest amount we got, we have to simple interest, and this is our principal, this is our rate of interest, and using this we can take out time duration for which Javed deposited the money. Clear? Now you can say in there directly बोलने से पहले dear what he did is क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया, घुमा दिया क्वेश्चन को. क्वेश्चन सिंपल था dear, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर फाइंड करना था आपको. नाउ वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट. दिस इज आवर प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बाय 100. सो गाइस सिंपल इंटरेस्ट अपने पास कितना जनरेट हो रहा है? 5,400. प्रिंसिपल अपने पास कितना है? इट इज 12,000. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए डियर 9%. टाइम वी हैव टू फाइंड दैट एंड डिवाइड बाय 100. डबल जीरोस कट करेगा, 120 डिवीजन में चलेगा, 9 डिवीजन में चलेगा, टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5400. 120 को डिवीजन में लेके आएंगे, 9 को डिवीजन में, 10 कैंसिल करेंगे, 9 से डियर 54 6 टाइम, 540 होगा 60 टाइम. तो 60 तो 12 से कट करेंगे, वी विल गेट 5. So we can say Javed deposited his money only for the 5 years. Clear? Next, second question पे move करते हैं. Second question says guys, you can say it's from the syllogism. Slog से अपने पास question है. We are given statement says all greens are blue. So I guess let's say these are greens. All greens are blue. Next, all blue are white. All blue are what? They are white. You can say guys blue white के अंदर हो जाएगा. Now we have the conclusions. Conclusion क्या idea we have? Some blue are green. You can say yes, some blue. Blue का जो कुछ part अपने पास कैसा है? It is green. Definitely it is correct.
Okay, next, some white are green. Dear, you can say some white are green. Yes, you can say white का कुछ portion green के O ने occupy किया. So yes, some white are green. Next, some green are not white. I guess dear green तो completely occupied है by the white. So you can say ये तो impossible case हो जाएगा. It is wrong. ये गलत हो जाएगा. All white are blue. सब white कैसे है dear? Blue. ये कैसे गाइस पॉसिबल है? इफ वी से आर गिवन पॉसिबिलिटी हो सकता था, बट आई गेस डेफिनेट कंक्लूड नहीं कर सकते. ऑल व्हाइट्स आर ब्लू माइट बी ट्रू एंड माइट नॉट बी, एंड इफ वी कैसे अगर कंक्लूजन अपने पास 100% श्योर नहीं है, वी आर नॉट गोना गो विद इट. सो आई गेस वी हैव ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू. Okay, so you can say option A, it says only first and second follows, that would be our correct answer. Clear? Question third says, from his house Lokesh went 15 kilometers to the north. Okay, now let's say this be the home of Lokesh. He went 15 kilometers to the north. 15 kilometer north में चला गया dear. Then he turned west and covered 10 kilometer. अभी dear वो west में move कर रहा है 10 kilometer. I guess west चला जाता है dear, and you can see कितना किलोमीटर? 10 kilometers. Now then he turned south and covered 5 kilometer. So I guess साउथ में मूव करता है, कितना डिस्टेंस चलता है? ही गो 5 किलोमीटर. यू कैन से 15 किलोमीटर्स ऊपर आया था डियर नॉर्थ के अंदर, बट साउथ में कितना गया? ओनली 5 किलोमीटर्स. नाउ वी आर गिवन फाइनली टर्निंग ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर्स. ईस्ट में कवर करेगा डियर, एंड कितना मूव करेगा? ही विल मूव बाय 10 किलोमीटर. सो आई गेस डियर ये डिस्टेंस और ये कवर हो जाएगा. ही विल बी इन द नॉर्थ पोजिशन. ओके, एंड कितना ऊपर रहेगा? ये 5 है, this is 5, so ये भी 5 होगा dear, and ये कितना होगा? This would be 10. So we have to answer in which direction is he from his house. House से dear अभी present किधर है? So this is how, this is final position. So obviously he is in the north direction presently. Okay, and distance पूछेगा, so we can say he is 10 kilometer north to the house. Okay, question number 4. That's a very easy question guys. We have to answer, choose the correct option that comes next in the sequence. So dear आपके पास एक sequence given है, you have to answer what gonna come at this question mark place. So क्या होगा dear? We are given square, square, circle. We are given square, square, circle. Then we have square, square. What next? I guess फिर से circle हो जाएगा. So we are following a sequence of square, double square, circle, double square, circle. So option B अपना correct answer है. We are given, you can say guys, we are given a pattern. You have to find out what gonna be the next point. Next point अपने पास क्या बनेगा, ये हमें find करना है. We are given B R D J D T F L F V H N. What gonna be the next? So I guess guys first position से first move करते हैं. B से D, I guess से C को skip किया D पे. नेक्स्ट डी से एफ, ई को स्किप किया एफ पे. सो आई गेस बी सी के बाद डी, डी ई स्किप करके एफ. सो क्या करेंगे? एफ के बाद जी को स्किप करेंगे, एंड नेक्स्ट हो जाएगा डियर एच. ओके, सो आई गेस एच से स्टार्ट करेंगे. वी कैन से सर ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट बिकॉज डियर नेक्स्ट आर को चेक करते हैं. सेकंड पोजीशन आर, आर के बाद एस को स्किप किया टी, टी के बाद गाइस यू को स्किप किया वी, वी के बाद डियर डब्ल्यू स्किप कर देंगे, एंड नेक्स्ट लगाएंगे किसके ऊपर? x के ऊपर जंप लगा देंगे. सो नेक्स्ट लेटर क्या होगा? दैट वुड बी x. सो डियर h के बाद x आना चाहिए, और ये एक ही ऑप्शन में है, इन द ऑप्शन नंबर ए. ओके, सो ये कैसे यही अपना क्या हो जाएगा? दिस इज आवर करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास गिवन है गाइस. x का वैल्यू गिवन है, इट इज 29 268 9. सिमिलर पैटर्न y 27 304 11 ये गिवन है गाइस. z अपने पास गिवन है 25 क्वेश्चन मार्क 13. सो गाइस आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या मिलेगा. ओके, सो आई गेस गाइस वी हैव टू टेक आउट कि सर कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा x के अंदर, वही पैटर्न z y में भी लगेगा, और वही आपके पास किधर फॉलो होगा? z के अंदर फॉलो करेगा. सो डियर ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है. 29 और 9 स्मॉलर नंबर है, 268 काफी बड़ा नंबर है. सो क्या कर सकते हैं सर? एडिशन से तो नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन से ट्राई करते हैं. एक काम करते हैं, 29 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? सो ये कैसे 9 इंटू 9 81 इंटू 2 करेंगे, सो वी विल गेट 261. ओके, 29 इंटू 9 इज 261, बट अपने को इंटरनल वैल्यू कितना गिवन है? 268. डियर 261 को 268 बनाने के लिए क्या करना होगा? आई नीड टू ऐड 7, सो इट विल कम आउट टू बी 268. चलिए चेक करते हैं. नाउ लेट्स अप्लाई द सेम मेथड फॉर द y. y के लिए भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे. व्हाट वी गोना टेक इज
27 को पिक करेंगे, 11 को पिक करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी गोना से 27 इंटू 11 कितना होगा डियर? 297. इंटरनल का वैल्यू क्या है? 304. डियर 297 को 304 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? आई गेस वी हैव टू ऐड 7. सो वी विल गेट 297 प्लस 7 304. सो डियर पैटर्न अपने पास क्या है? यू कैन से पैटर्न है सर, फर्स्ट यू कैन से आउटर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सर 7 का एडिशन कर देंगे, वी विल गेट अवर इंटरनल वैल्यू. सो सिमिलरली z के ऊपर भी अप्लाई करेंगे. फॉर दिस वी गोना से सर अपने पास हो जाएगा 25 इंटू 13, एक नंबर मिलेगा, उसमें हम 7 का एडिशन करेंगे टू फाइंड अवर क्वेश्चन मार्क. सो सबसे पहले 25 इंटू 13 का लेते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 250 एंड वी हैव 75, सो 325. ओके 325 एंड इसमें 7 ऐड करेंगे डियर, तो 325 प्लस 7 इज व्हाट? ये हो जाएगा आपके पास 332. ओके सो ऑप्शन ए 332 वुड बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 बनाते गाइस. वी आर गिवन पॉइंटिंग टू गणेश, संदीप सेड. क्योंकि इसे गणेश की तरफ पॉइंट करते हुए संदीप बोल रहा है गाइस, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर. सो आई गेस गाइस संदीप ने अपने आप को लिंक किधर किया? माय ब्रदर के साथ लिंक कर रहे हैं. ओके सो यू कैन से द फादर ऑफ माय ब्रदर. हु इज द फादर ऑफ माय ब्रदर? आई गेस फादर ऑफ माय ब्रदर इज नथिंग बट माय फादर. सो आई गेस डियर यहां से जो फादर का बात कर रहे हैं ये संदीप अपने से लिंक अप कर रहे हैं. सो लेट्स से दिस इज संदीप. सो आई गेस संदीप का ब्रदर होगा अपने पास. ओके एंड संदीप के ब्रदर का फादर. नाउ यू कैन से वी आर गिवन द ओनली डॉटर ऑफ द फादर. फादर का ओनली डॉटर क्या हो जाएगा? यू कैन से गाइस ओनली डॉटर बोला है, सो आई गेस से सन तो मल्टीपल हो सकते हैं. सो आई गेस से संदीप भी एक सन होगा अपने पास एंड यू कैन से इनका एक सिस्टर हो जाएगा, दैट वुड बी द ओनली डॉटर ऑफ देयर फादर. Okay, now we are given he is the son of only daughter. He would means Ganesh. Ganesh is the only son or Ganesh is the son of this only daughter. So ये जो only daughter है और आगे से संदीप की जो sister है डियर, संदीप की sister का son कौन है अपने पास? It is our Ganesh and son है तो डियर ये क्या होगा? That would be positive. Now we can say sir, you can say because father के पास only एक ही daughter है, so संदीप should be male. ओके संदीप मेल हो जाएगा. वी नीड टू आंसर हाउ इज संदीप रिलेटेड टू द गणेश. संदीप का गणेश से क्या रिलेशन है डियर? सो आई कैन से फ्रॉम गणेश वी गोना सी. सो आई कैन से डियर ये कौन है अपने पास? यू कैन से मदर्स ब्रदर. मदर के ब्रदर है, मदर के ब्रदर को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम अंकल. एंड विच अंकल? मैटरनल अंकल. क्लियर? सो अपना ऑप्शन से क्या बनेगा? दिस वुड बी अवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 8 पे चले गाइस. वी आर गिवन लुक केयरफुली फॉर द पैटर्न एंड देन चूज विच पेयर ऑफ द नंबर्स कम नेक्स्ट. डियर अपने पास एक पेयरिंग गिवन है, वी हैव टू आंसर अपने पास नेक्स्ट नंबर्स क्या बनने वाले हैं. ओके लुक टुवर्ड्स देम केयरफुली. यू कैन से गाइस 84 एंड 78 कैसा लिंक अप है? आई कैन से नेगेटिव 6. यू कैन से डिफरेंस 6 का चल रहा है 78 72, डिफरेंस 6 का 72 66, डिफरेंस 6 का 66 60, डिफरेंस ऑफ 6, 60 and 54, डिफरेंस ऑफ 6, 54 48, डिफरेंस ऑफ 6. सो डी आगे भी क्या करना है सर? 6 का डिफरेंस लेंगे. 48 माइनस 6 डियर कितना हो जाएगा? 42. नेक्स्ट 42 माइनस 6 करेंगे डियर कितना हो जाएगा? 36. सो नेक्स्ट पेयर्स आर 42 एंड 36 आर द नेक्स्ट नंबर. सो ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए सो लाइक द वीडियो गाइस एंड शेयर विद द ऑल द फ्रेंड्स. Okay, next question number 9. We have to answer guys, which of the following diagrams indicate best relationship between swimming, badminton and hockey. So badminton, swimming and hockey में guys क्या relation है? I can say they all are sports. They all are sports, but I can say individually उनके बीच में कोई link है? The answer is no. I guess guys there be a sports के अंदर guys I have swimming, I have badminton, I have hockey, but you can say individually they are completely separate. So we can say option B. You can see जो represent कर रहा है all are different. You can say that would be our correct choice. Okay, but अगर आपको sports भी given होता तो हम लोग इन सबको एक में cover कर देते. Clear? Next question 10. We are given if tiger is coded as XMKIV, then pony is coded as what? Tiger के लिए code given है XMKIV, pony के लिए code हमें find करना है.
सो डियर टी का अपने पास क्या पोजीशन होता है, इफ वी राइट डाउन टाइगर TIGER और इसका कोड राइट डाउन कर रहा हूं मैं XMKIV। सो डियर टाइगर का प्लेस वैल्यू 20, I का 9, G 7, E 5, R 18, X होता है 24th, M होता है 13th, की 11th होता है, I 9 एंड V होता है 22nd। सो डियर 20 से 24 कितना एडिशन हुआ, 4 का एडिशन, 9 से 13 4 का एडिशन, सो आई गेस 7 11 4 एडिशन हो रहा है डियर। ओके 5 to 9 4 का एडिशन चल रहा है, 18 22 क्या चल रहा है 4 का एडिशन। सो डियर सिंपली क्या करना है, इन एवरी लेटर वी गोना ऐड द 4, सब में 4 इंक्रीज कर देंगे। सो डायरेक्ट पॉनी में अपने पास क्या हो जाएगा, पॉनी का P होता है अपने पास 16, 16 प्लस 4 इज व्हाट 20, मींस यू कैन से लेटर P रिप्लेस करेगा T को, P will be replaced by the D और T एक ही ऑप्शन में डियर which is what ऑप्शन नंबर A। So dear we will not waste time for finding the rest, यही अपने पास क्या हो जाएगा, that would be our correct answer। otherwise आप लोग सब में एडिट करके चेक करेंगे, you will get the same answer। okay? चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 says which one would be the folded punch paper that would look like the unfolded punch paper when opened। so dear what we are given a unfolded paper, एक पेपर का पीस आपके पास गिवन है फिगर के अंदर। ओके सो आई गेस डियर यहाँ पे क्या गिवन है, यू आर गिवन सम पंचेस, पंच गिवन है डियर। सो यू आर गिवन, ये पेपर को हम लोगों ने फोल्ड किया एंड फोल्ड करके अनफोल्ड कर रहे हैं। सो आई गेस कौन सा ऐसा अपने पास फोल्डेड पेपर, दीज आर 4 फोल्डेड पेपर्स। सो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा पेपर हो सकता है जिसको अनफोल्ड करने पे ऐसा शेप मिलेगा। सो आई गेस अगर मैं इसे अनफोल्ड करूंगा डियर, सो आई गेस ये ऊपर लेके आएगा, इधर लेके आएगा, इधर लेके आएगा, बट आई गेस मुझे तो कैसा चाहिए, क्रॉस में चाहिए। सो आई गेस क्रॉस में एक ही ऑप्शन में है और वो कौन सा ऑप्शन है, इट इज इन द ऑप्शन नंबर ए। आल्दो डियर यू कैसे बहुत ज्यादा गैप इनमें विजिबल है, इनमें गैप कम विजिबल है, बट आई गेस यू कैसे टिल्टेड पोजीशन में यू कैसे बेस्ट ऑप्शन के लिए आपको चूज करना है। सो आई गेस बेस्ट ऑप्शन ए के, बिकॉज टिल्टेड आपके पास सिर्फ ए में है, सो यू विल गेट ए एज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 says guys शीला said to माधुरी, शीला ने माधुरी से बोला गाइस यू आर माई ब्रदर्स मदर्स सिस्टर। सो आई गेस ब्रदर्स मदर कौन होता है डियर, ब्रदर की मदर मीन्स माई मदर। सो आई गेस शीला वांट टू से टू माधुरी, शीला ने माधुरी से कहा यू आर माई मदर्स सिस्टर, मेरी मदर की सिस्टर हो। सो आई गेस लेट्स से दिस बी शीला, शीला के लिए कोई ब्रदर भी होगा डियर। ओके एंड उनकी मदर है, ऑब्वियसली वो शीला की भी मदर है। सो शीला की मदर है फीमेल एंड यू कैन से शीला की मदर की सिस्टर है अपने पास कौन, दैट्स अवर माधुरी। ओके नाउ सिस्टर है there, that means she is female. now you have to answer and you have only one sister। next you can say हाँ शीला क्या कंफर्म करिए, शीला बोल रही है डियर माधुरी यू हैव ओनली वन सिस्टर। सो वो वन सिस्टर कौन होगा, दैट वुड बी शीलाज मदर, वो शीला की मदर है। सो वी हैव टू आंसर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट डिटरमाइन हाउ दैट सिस्टर मीन्स माधुरीज ओनली सिस्टर इज रिलेटेड टू द शीला। तो वो शीला के साथ कैसे रिलेटेड है, आई गेस वो शीला की मदर है। सो यू गोना से शी इज मदर ऑफ द शीला। क्लियर? ओके एंड डू रिमेंबर यहां पे पूछ किसके रिगार्डिंग रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको पूछे हाउ दैट सिस्टर इज रिलेटेड टू शीला, वो शीला के साथ कैसे रिलेटेड है। तो शीला के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन है, शी इज मदर। बट अगर आपसे पूछा होता गाइस हाउ इज शीला रिलेटेड टू दैट सिस्टर, सिस्टर उस सिस्टर के लिए मींस इस पर्सन के लिए शीला कौन है, सो ऑब्वियसली वो डॉटर हो जाता अपने पास। बट आई गेस नहीं, हमें मदर के आंसर करना है। सो हम वी हैव टू आंसर फ्रॉम द शीला's पॉइंट, सो दैट वुड बी मदर विज आवर करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन 13 says 10 years ago the average age of A and B was 20 years। so dear 10 years ago 10 साल पहले एवरेज एज कितना था, 20 years था। सो डियर अभी कितना हो जाएगा, व्हाट वुड बी द प्रेजेंट एवरेज एज। सो आई गेस प्रेजेंट एवरेज एज के लिए क्या करेंगे, यू कैन से डियर यू कैन से 10 हम इसके लिए ए में ऐड करेंगे, 10 बी में ऐड करेंगे, बट आई गेस डियर क्या हो जाएगा, यू कैन से अगर एवरेज में चेक करोगे तो एवरेज में भी 10 ही इंक्रीज करेगा। सो एवरेज एज ऑफ ए प्लस बी प्रेजेंट में कितना होगा डियर, इट वुड बी 20 + 1 दैट वुड बी अवर 30।
ओके, ए एंड बी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 30. नेक्स्ट वी आर गिवन टुडे द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 30 ईयर्स. ए बी एंड सी का भी एवरेज कितना है डियर, ये अपने पास 30 ईयर्स है. सो आई गेस ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 कितना होगा, दिस इज आल्सो 30. सो डियर ए प्लस बी का वैल्यू यहां से क्या मिल सकता है, क्या मैं लिख सकता हूं, ए प्लस बी होगा अपने पास 2 इंटू 30 60, और यहां से मैं लिखूंगा डियर ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 30 इंटू 3 इज 90. सो डियर ए प्लस बी 60 था मेरे पास, तो यहां से क्या मैं सी का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं. सो वी कैन से यस सर 60 प्लस समथिंग इज 90, सो दैट सी इज व्हाट, C is our 30 years old. So we can say how old C will be after 5 years. Present age C का 30 है dear. Present age C का 30 है, but अपने से पूछे after 5 years कितना होगा. So after 5 years C would be C plus 5, basically 30 plus 5 35 हो जाएगा. So don't hit 30 as the answer. Option C 35 would be the correct answer. समझा? Next question number 14th. Question 14th, we are given 5 students A, B, C, D and E. These are given A, B, C, D, E are अपने पास 5 students है. They are sitting in a row. एक रो के अंदर बैठा है guys. We are given D is on the right of E. D के इधर है, E के राइट में. So let's see E हो जाएगा dear. E के राइट में कौन हो जाएगा? It would be D. Next अपने को बोला है we are given B is on the left of E. B के इधर है guys, on left of E. E का लेफ्ट में हो जाएगा हमारे पास E. Now, but is on the right of E. But means use किसके लिए हो रही है, अभी भी B का ही बात कर रहा है. B is on the right of A. So I guess इधर A होगा, A के राइट में अपने पास कौन हो जाएगा, this would be our B. And we are given D is on the left of C. D किसके लेफ्ट में, C के लेफ्ट में. E के राइट में हो जाएगा. So I guess यहाँ पे C के लेफ्ट में कौन है, this is our D. Clear? And you can say 5 people ही बोला था. So I guess this would be our final arrangement. So I guess ये मेरा लेफ्ट पोजीशन है, ये मेरे पास राइट हैंड पोजीशन है. अकॉर्डिंगली हम लोगों ने पूरा अरेंजमेंट कर दिया. So we have to answer who is sitting on the extreme left. So extreme left का बात कर रहे हैं. So ये क्या हो जाएगा, this is our A. Clear? So option A, you can say person A is our right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन 15 बनाना गाइस. क्वेश्चन 15 says 26 January 1996 this was Friday. ये फ्राइडे था डियर. सो यू हैव टू आंसर व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन 26 January 1996. सो डियर क्या करेंगे, 96 से 96 आना है, डेट सेम है तो क्या करेंगे सर, एक ईयर मूव करना है. सो डियर एक ईयर के अंदर कितना एक्स्ट्रा डे होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है. सो एक दिन आगे मूव करेंगे. नो सर 96 कैसा ईयर है, 96 इज अ लीप ईयर. सर डियर लीप ईयर में क्या होता है, डियर एक एक्स्ट्रा डे होता है किधर, 29 फरवरी के अंदर. अब जब जैन से क्रॉस करेंगे तो 29 फेब तो मिलेगा, यस मिलेगा. सो आई गेस डियर 1 नहीं, यहाँ पे एडिशन कितना होगा, 2 का एडिशन होगा. ओके, सो आई गेस फ्राइडे से 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाएगा कितना, यू कैन से दैट वुड बी अवर संडे. सो 26 January 1997 वुड बी अ संडे. Question number 16th, we are given study the following arrangement carefully and answer the question given below. Okay, so एक arrangement given है. We are given how many such consonants are there in the above arrangement, each of which is the immediately preceded by a consonant and immediately followed by a number. So I guess मुझे find क्या करना है, we have to find out consonant. सबसे पहला चीज मुझे consonant चाहिए डियर. Okay, and you can say which is immediately preceded by consonant. कि consonant से preceded means पहले, इससे पहले क्या होना चाहिए, there should be a consonant and immediately followed by a number. इसके बाद क्या होना चाहिए, immediately एक number होना चाहिए. So dear मेरा requirement क्या है, अपना requirement है consonant number. ओके, सो कॉन्सोनेंट नंबर जैसा रिक्वायरमेंट है. सो सबसे पहला टारगेट क्या करेंगे डियर, द प्रॉब्लम होने वाला है कॉन्सोनेंट एंड वोवल वाला. ओके, सो सबसे पहले डियर वोवल्स को इलिमिनेट कर देते हैं. व्हाट आर वोवल्स, वी नो 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू. ओके, सो जहां पे भी ये आपको विजिबल है इन्हें रिमूव कर दो. सो आई गेस ओ नहीं हो सकता मेरे पास, ए नहीं हो सकता, एंड ये ई नहीं हो सकता, एंड आई गेस ये आई भी नहीं होगा, और यू कैसे अपने पास यू तो चलो गिवन नहीं है. ओके, अपने को लुक करना है गाइस कॉन्सोनेंट नंबर. सो आई गेस कॉन्सोनेंट नंबर नहीं बन रहा.
आई गेस हाँ, यू कैसे ये बन रहा है BF1, बी कॉन्सोनेंट है, एफ कॉन्सोनेंट, 1 नंबर, एक बन गया डियर। नेक्स्ट यू कैसे ये अपने पास पैटर्न नहीं बन रहा। नेक्स्ट यू कैसे कॉन्सोनेंट नंबर नहीं है, ओके। नेक्स्ट यू कैसे गाइस यहां पे बन रहा है अपने पास कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट और एक नंबर, GP7। सो आई गेस डियर मुझे 2 पेयर मिल रहा है GP7 एंड BF1। सो आई गेस ये 2 पेयर बन रहा है अपने पास कॉन्सोनेंट नंबर इमीडिएटली प्रेसिडेड होना चाहिए। यू कैसे MN के बाद आ तो सकता था डियर, बट यू कैसे 3 के बीच में कौन आ गया, देयर इज अ सिंबल। सो आई गेस ये नहीं बनेगा अपना, वी विल हैव ओनली 2 एज द आंसर। क्लियर। सो अपने पास 2 पेयर्स है, एक हो जाएगा BF1 और एक होगा GP7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 अपने पास गिवन है गाइस, इन अ सर्टेन लैंग्वेज वी आर गिवन द इफ सनशाइन इज रिटन एज TVOTIJOF। you can say TGF कोड गिवन है, वी हैव टू आंसर द कोड फॉर द मून। ध्यान से देखिए गाइस, दिट्स अ वेरी इजी कोडिंग। सो गाइस आई गेस से S+1 कितना होगा, T हो जाएगा, U+1 V N+1 O S+1 T, यू कैसे H+1 I एंड यू कैसे I+1 J, यू कैसे N से +1 करेंगे O एंड यू कैसे E से +1 F। सो ये सब में क्या किया, 1 का एडिशन करके राइट डाउन किया। ओके, सनशाइन में क्या किया डियर, सबके अंदर 1 नंबर का एडिशन करके राइट डाउन किया, वी गेट द कोड। सो मून के लिए क्या करेंगे, M+1 इज N, O+1 P, O+1 P, N+1 यू कैसे O हो जाएगा। सो NPPO, दिस वुड बी अवर करेक्ट कोड। सो ऑप्शन बी में अपने पास NPPO लिखा है, सो यही अपने पास क्या है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 18 में बोला गाइस, वी आर गिवन 2 बस टिकट्स फ्रॉम सिटी A to सिटी B एंड 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी A to सिटी C कॉस्ट 77। A से B के लिए 2 टिकट एंड A से C के लिए 3 टिकट का गाइस टोटल कॉस्ट अपने पास कितना है, दिस इज 77 रुपीज। बट वी आर गिवन 3 टिकट्स फ्रॉम A to B, A से B का 3 टिकट्स एंड 2 टिकट्स फ्रॉम A to C, दे कॉस्ट 73। उनका कॉस्ट कितना है, 73। सो वी हैव टू आंसर व्हाट आर द फेयर्स फ्रॉम सिटी B एंड C टू फ्रॉम सिटी A। सो कैसे गाइस अपने को फेयर्स फाइंड करना है सिटी B एंड C के लिए, सिटी A से कितना होगा। आई गेस गाइस A से ट्रैवल कर रहे हैं, सो वी गोना टेक आउट दिस वन। लेट्स ट्राई करते हैं डियर, सिटी A से B के फेयर को हम लोग चार्ज कर लेते हैं, लेट्स से B रुपीज। सिटी A से C का अपने पास फेयर है, लेट्स से C रुपीज। सो डियर मेरे पास क्या होगा, 2 बस टिकट ऑफ B, सो आई गेस एक का B हो जाएगा, 2 के लिए क्या होगा 2B प्लस यू कैसे 3 टिकट्स टू C, सो आई गेस ये हो जाएगा 3C। इसका प्राइस है अपने पास 77। नेक्स्ट बोला है बट 3 टिकट्स टू B, 3 टिकट्स टू B दैट इज 3B हो जाएगा अपने पास प्लस 2 टिकट्स टू C दैट इज 2 टाइम्स ऑफ C, ये अपने पास मिलेगा 73। सो ये होगा टोटल 73। वी नीड टू टेक आउट द फेयर्स फॉर, यू कैसे बेसिकली हमें चाहिए B एंड C का वैल्यू। सो कैसे फाइंड करेंगे, वी गोना से सर एक कांस्टेंट को सेम बना देंगे एंड यू कैसे बाकी को एलिमिनेट करेंगे। सो लेट्स से डियर 2 इक्वेशंस अपने पास है, 2 वेरिएबल है B एंड C। एक काम करते गाइस, अबव इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 के साथ। पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो यू कैसे गाइस 3 into 2 कितना हो जाए 6, 3 into 3 हो जाएगा ये अपने पास 9, 77 into 3 हो जाएगा कितना, यू कैसे 231। नेक्स्ट नीचे वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, सो 2 into 3 6। सो आई गेस ये B का कोफिशिएंट में सेम बनाने का ट्राई कर रहा हूं बेसिक। ओके, आप लोग C का कोफिशिएंट सेम बना सकते हैं, ऊपर वाले को 2 से नीचे वाले को 3 से बना के। क्लियर, बट आई गेस आई एम गोइंग विद द मेकिंग कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ B एज सेम, मैं B का कोफिशिएंट सेम कर रहा हूं। क्लियर, सो रीराइट कर लेते हैं इक्वेशंस, कैसा हो जाएगा मेरे पास, ऊपर हो जाएगा 3 into 2 इज 6B प्लस 3 into 3 इज ये हो जाएगा 9C इक्वल 77 into 3 हो जाएगा अपने पास, 7 into 3 is 21 into 11 231, 2 into 3 is 6B हो जाएगा प्लस 2 into 2 4C हो जाएगा इक्वल्स 2 into 73। सो ये हो जाएगा अपने पास 146। सो डियर इनका डिफरेंस ले लेते हैं, B6B से 6B कैंसिल, 9 minus 4 हो जाएगा 5C और ये अपने पास मिलेगा 231 minus 146। सो ये हो जाएगा डियर 5 एंड यू कैसे 12 माइनस ये हो जाएगा अपने पास 8। सो 5C का वैल्यू 85 आ रहा है, सो C का वैल्यू कितना होगा, 85/5 इज 17। सो डियर C के लिए फेयर कितना रुपीज है, C के लिए फेयर 17 रुपीज हो जाएगा। नाउ लुक फॉर द ऑप्शंस। डियर ऑप्शन में अपने को B एंड C बोला है, सो डियर पहला वाला B को है अपने पास है, हम C के लिए आंसर करें, सो C को चेक करोगे, सो 17 किधर है, ओनली इन द ऑप्शन B।
सो आई गेस सी का 17 हो जाएगा एंड बी का कितना हो जाएगा, दिस वुड बी आवर 13 रुपीज। क्लियर? अदरवाइज एक इक्वेशन के अंदर पुट करके भी हम लोग बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो आई गेस बी, हाँ, फेयर फॉर सी इज 17 रुपीज एंड फेयर फॉर बी इज व्हाट, दैट वुड बी अवर 13 रुपीज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 अपने पास गिवन है गाइस, वी आर गिवन a brinjal is called tomato, brinjal is called tomato, tomato is called lady's finger, a lady's finger is called bitter gourd, a bitter gourd is called carrot. Now we have to answer what should be used for the vegetable lady finger. So I guess lady finger के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, lady finger is called what, lady finger is called bitter gourd, called बोले डियर, so यही क्या हो जाएगा, this is the required answer, लेडी फिंगर इज कॉल्ड बीटर गॉड। सो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू हिट इन वन गो, एक गो के अंदर हिट करो गाइस। अ फार्मर हैज 12 sheep, अ फार्मर हैज 12 sheep, अ लाइटनिंग स्ट्राइक किल्स ऑल बट 3 of them, यू कैन से लाइटनिंग स्ट्राइक्स किल ऑल बट 3 मींस व्हाट, ये सबको मार दिया बट 3 को नहीं मारा। ओके, सो वी हैव टू आंसर हाउ मेनी शीप्स आर अलाइव। So we can directly say, directly guys, by the line of, you can say English line, English verbal के according अपने पास क्या है, kill all but 3 means what, all are killed but 3 are not, so we can say 3 are alive. Okay, so that's a no calculation required, directly आपके पास verbal का question था। Question 21 says, if every 2 out of the 3 ready-made shirts need alteration in the sleeves, 2/3 ready-made shirts को क्या चाहिए guys, alteration in the sleeves, उनका sleeves ठीक करना पड़ेगा। Next we are given 3 out of the 4 ready-made shirts need alteration in the collars. So I dear, हाँ, 3/4 shirts को किसमें alteration चाहिए, they need alteration in the collars. Next 4 out of 5 need in the body, 4 out of 5 shirts को किसमें अल्ट्रेशन चाहिए गाइस, उनका बॉडी अल्ट्रेशन करना जरूरी है। Now we are given how many alterations will be required for the 60 shirt considering no overlaps. No overlaps means, ये overlaps means होता है कि अगर लेट्स से कि एक शर्ट में अपने पास को अल्टरनेशन करने का जरूरत है, सो आगे से मैं उसका स्लीव्स कॉलर सबको एक साथ करूंगा, सो वी डोंट हैव टू डू दैट थिंग, मीन्स यू कैसे एक अल्टरनेशन के लिए एक बार मूव करना पड़ेगा, सो वी हैव टू टेक आउट हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू डू द अल्टरेशन। सो डायरेक्टली करते हैं, आई गेस अगर टोटल 60 शर्ट्स है, सो 60 शर्ट में से गाइस स्लीव्स की अल्टरेशंस कितने का होगा, फॉर द स्लीव्स वी विल हैव 2 out of 3, सो 2/3 शर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अल्टरेशन, सो 2/3 ऑफ 60 कितना हो जाएगा, दिस वुड बी अवर 3 से कट कर देंगे 20 टाइम्स, 20 into 2 is 40 times, 40 shirts need alteration in the sleeves. सो राइट यू के से 40 टाइम्स तो ये इधर जाएगा। नेक्स्ट कॉलर में अल्टरेशन कितने का होगा डियर, 3 out of 4, यू के से कॉलर के लिए यू के से 3/4 शर्ट्स विल गो इन द अल्टरेशन, आगे से 3/4 ऑफ 60 कितना होगा, 4 से 60 15 टाइम, 15 into 3 is 45, सो 45 टाइम्स शर्ट्स विल गो फॉर द यू के से अल्टरेशन इन द कॉलर। नेक्स्ट बॉडी में अल्टरेशन कितने जाने वाले हैं, 4/5, सो आगे से 4/5 दे विल गो फॉर द बॉडी अल्टरेशन, क्योंकि से टोटल शर्ट्स अपने पास 60 है, 5 से कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स, 12 into 4 is 48, सो आई गेस ये टोटल कितना हो जाएगा, ओवरलैपिंग कंसीडर नहीं करेंगे, सो वी गोना जस्ट सिंपली ऐड द वैल्यूज, ऐड करेंगे तो गाइस कितना, 8 + 5 is 3 and you can say 13, 4 is 12 and 1 13, so we will get 133 alterations. Okay, so for the 60 shirts we will have to go by 133 alterations if there is no overlaps. Next question number 22nd, guys, this must be answered by everyone. A living man must necessarily have what, living man के लिए guys क्या होना चाहिए, teeth, feet, eyes, heart. So I guess guys आज की डेट में heart तो किसी के पास होता है नहीं, but guys this is required for the living. If you want to stay alive you must have a heart. Clear? Question 23rd. Question 23rd says A is 5 times as large as B. ये अपने पास क्या है guys, 5 times as large as B. We need to answer what percent is B of A. So dear अपने को आंसर करना है B is what percent of A.
सो b इज व्हाट परसेंट ऑफ a कैसा मिलेगा, b बाय a इंटू 100, ऐसा हो जाएगा डियर। ओके, सो ये कैसे फाइंड करते हैं, वी आर गिवन a इज 5 टाइम्स एज लार्ज एज b, a अपने पास हो जाएगा डियर 5 टाइम्स एज लार्ज एज b। अगर मैं रेशियो टेक आउट करता हूं a बाय 5 b हो जाएगा, और मैं लिख सकता हूं डियर 1 बाय 5 इज अवर b बाय a, बिकॉज मुझे रेशियो फाइंड करने के लिए b बाय a का जरूरत है, सो मैंने a बाय b की जगह b बाय a फाइंड किया। b बाय a का वैल्यू कितना 1/5, सो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना 1/5 इंटू 100, और वी कैन डायरेक्टली से 1/5 कितना होता है, ये होता है मेरा 20%। क्लियर, सो b इज 20% ऑफ अवर a। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 अपने को बोले गाइस द नंबर p एक्सीड्स q बाय 25%, p u के से q से कितना एक्सीड करता है 25%, वी नीड टू आंसर बाय व्हाट परसेंट इज q लेस देन p, सो q p से कितना लेसर है। सो गाइस लेट्स मेक दिस वन बाय बेसिक, एक बार हम लोग इसे बेसिक अप्रोच से ट्राई करेंगे एंड देन वी गोना गो बाय अ वेरी इजी शॉर्टकट। ठीक है, एक बार हम लोग बेसिक अप्रोच से लर्न करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, देन वी गोना डायरेक्टली हिट इट शॉर्टकट, इसके शॉर्टकट को हिट करते हैं। सो गाइस वी आर गिवन नंबर p एक्सीड्स q बाय 25%, सो लेट्स से डियर p अपने पास q को एक्सीड कर रहा है 25% से, सो p कितना हो जाएगा, p वुड बी 125% ऑफ q, और वैग लिख सकता हूं डियर क्या हो जाएगा 125% मींस 125 बाय 100 ऑफ q हो जाएगा मेरे पास। नाउ डियर मुझे चाहिए बाय व्हाट परसेंट इज q लेस देन p, सो डियर q को कंपेयर किससे करना है, p से कंपेयर करना है, दैट इज q बाय p चाहिए। सो डियर अगर मैं q बाय p लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सर p बाय q आता तो 125 बाय 100 होता है, q बाय p हो जाएगा कितना 100 बाय 125। ओके, सो 25 से कैंसिल करेंगे हो जाएगा 4 बाय अपने पास 5, बट डियर हमें परसेंटेज कंपेयर करने के लिए हमेशा किसका रिक्वायरमेंट होता है, अपने को रिक्वायरमेंट होता है डिनोमिनेटर 100। सो डियर p को 100 बनाने के लिए क्या करें, लेट्स मल्टीप्लाई विद द 20, सो अपने को मिल जाएगा p q बाय p इज अवर 80 बाय 100। सो डियर इफ p इज 100 तो q अपने पास कितना है 80, सो हाउ मच परसेंट इज q लेस, q कितना कम है 100 से डियर 80 कितना कम होता है 20%, सो वी कैन से सर ये अपने पास कितना परसेंट लेसर है, दिस इज लेसर बाय 20%। क्लियर, सो डियर दिस इज द बेसिक अप्रोच जिससे आप ये क्वेश्चन बना दे, बट अगर मुझे डायरेक्ट शॉर्टकट पे जाना है तो क्या करेंगे, वी गोना डायरेक्टली हिट व्हाट्स द फ्रैक्शन ऑफ 25%, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है डियर 1/4। ओके, एक्सीड कर रहे डियर, एक्सीड मींस एक्स्ट्रा, सो मैं डायरेक्टली लिखूंगा p का वैल्यू क्या होगा 4 + 1 इज 5, सो p हो जाएगा 5/4 ऑफ q। हमें कंपेयर किसे करना है, q टू बी कंपेयर्ड किसके साथ करना है, p के साथ, सो वी गोना राइट डाउन q बाय p, अपने पास कितना हो जाएगा 4/5। क्लियर, सो आई गेस डियर डायरेक्टली मेरे को रेशियो मिला q बाय p कितना हो 4/5, सो डियर 5 के कंपैरिजन में 4 कितना कम है, आई गेस लेसर बाय 1, एंड किससे कंपेयर करें 5 से कंपेयर करें, एंड 1/5 फ्रैक्शन में कितना होता है, दिस इज अवर 20%, सो ये डायरेक्ट आपको आंसर हिट हो जाता, दैट्स अवर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आंसर करते डियर, वी आर गिवन अ प्रिंटर numbers the pages of a book starting with the 1 and uses 3189 digits in all, टोटल कितना डिजिट्स यूज किया दिया 3189 डिजिट्स इसने यूज किया है हमारे पास, क्योंकि से स्टार्टिंग विद द 1, सो वी हैव टू आंसर हाउ मेनी पेजेस द बुक है, बुक्स में कितना टोटल पेज होगा हमारे पास। क्लियर, सो डियर ऑप्शंस को अगर देखेंगे सो अपने पास क्या गिवन है, ऑल ऑप्शंस आर ग्रेटर देन 1000 से ग्रेटर अपने पास नंबर है। सो सबसे पहले गाइस लेट्स टेक आउट टिल 1000, और आगे से लेट्स टिल 999 कितना डिजिट्स रिक्वायरमेंट होगा, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टिल द 999। सो डियर वी हैव सम 1 डिजिट नंबर, वी हैव सम 2 डिजिट नंबर, वी हैव सम 3 डिजिट नंबर। सो आई डियर 1 डिजिट नंबर्स में क्या होगा 1 to 9, दीज आर 9 डिजिट्स, and you can see सब में क्या होते हैं, they are 1 digit number, so I can say they utilized 9 digits, इन्होंने कितना digits utilize किया 9 digits। next 2 digits number पे आते डियर, 2 digits number start करेगा 10 से until rise to the 99, to 10 to 99 ये कितना नंबर होता है, these are total 90 numbers,
दीज आर टोटल 90 नंबर्स एंड ये सब में कितना डिजिट्स है, 2 डिजिट्स. सो डिजिट्स काउंट करेंगे तो क्या कर देंगे, डबल करेंगे. 9 into 2 is 180 digits. 180 digits इधर यूटिलाइज हुआ डियर. नाउ गाइस कमिंग टू द 999. सो आई गेस अभी 3 डिजिट नंबर कितना और हो जाएगा, क्योंकि से 100 से स्टार्ट करेगा एंड टिल मूव कहां तक करेगा, 999 तक. सो डियर कितना डिजिट्स हो जाएगा, 99 पीछे माइनस कर देंगे. सो वी हैव टोटल 900 डिजिट्स, sorry 900 numbers are here, 100 to 999. And you can say guys every number has how many digits, every number has 3 digits. So total digits कितना यूज हुआ, into 3 कर देंगे, that would be 2700. So I guess till 999 कितना digits मैंने यूज किया. So I guess 270 plus 180 plus 9. So ये होगा dear 2889 digits. Till 999 में यूज हुआ डियर. Why I have written for the 1000? Because डियर 1000 से आपके पास 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है. ओके सो उसे हम लोग साइड में कैलकुलेट करेंगे. नाउ डियर टोटल मैंने डिजिट्स कितना यूज किया, 3189. अभी तो कितना यूज हो चुका है, 2889. सो डियर 4 डिजिट नंबर अब 1000 से कैरी करके डियर कुछ नंबर्स आपके पास मूव करेगा 4 डिजिट नंबर्स का. ओके सो दे विल ऑल हैव 4 डिजिट्स. सभी कितना यूज करेंगे, 4 डिजिट्स, and into they will have some value and they will use the remaining number of digits. So remaining digits अपने पास कितना होगा, I guess 3189 टोटल था, उसमें से 2889 को माइनस कर देंगे, 89 कैंसिल हो जाएगा and we will get 300. So we have left only 300 digits. So dear 300 digits can be used. Okay and dear हर एक नंबर अभी कितना digits यूज करेगा, 4 डिजिट्स यूज करेगा. सो कितना नंबर्स मेरे पास हो सकता है, आई कुड ओनली हैव 75 मोर नंबर्स. ओके स्टार्ट किधर से करना डियर, 1000 से स्टार्ट करना है. अगर मैं 1 से स्टार्ट करता डियर तो 75 तक मूव करेंगे, बट 0 से स्टार्ट करें, 1000 से स्टार्ट करें तो कहां तक जाएंगे, वी विल मूव टिल द 1074. Okay, so we can say sir we have a book containing of 1074 pages. Question 26 अपने पास given है guys. Which two statements when taken together are sufficient to prove that Kelly has brown hair? डियर हमें प्रूफ क्या करना है, Kelly has brown hair. So डियर सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, where are brown hairs? So I guess guys हाँ we can say guys Rachel has brown hairs. Rachel has brown hair. Okay, Kelly has long hair. Long hairs का brown hair से कोई भी लिंक नहीं है. Rachel is 10 years old. Kelly's hair is same color as Rachel's color. अब ये Rachel के hairs color brown है and Kelly and Rachel के hair color कैसा है, they are same. Rachel has short hair. You can say guys we have to take out only brown hair. अगर दो बाल भी है तो वो भी क्या होंगे dear, you can say they could be only brown hairs. Okay, we don't go for the long hair, short hair, or you can say guys bald shape. We're gonna simply say color कैसे है, you can say Rachel and Kelly have the same color, so I can say second and fourth they are enough. Okay, so option B क्या हो जाएगा, that would be our correct answer. Question number 27. Question 27 says a person crosses 600 meter long street in 5 minutes. So I guess guys distance अपने पास given है, time given है, what is speed in किलोमीटर पर आवर. So dear किलोमीटर पर आवर में स्पीड्स कितना हो जाएगा. So simply dear we gonna convert, we can say dear speed अपने पास क्या होता है, speed is distance upon time. So dear distance है 600 मीटर, टाइम हो जाएगा अपने पास 5 मिनट, और मैं सेकंड में बना लेता हूं इसे, ये हो जाएगा 5 into 60 सेकंड. So ये 5 into 60 सेकंड हो गया. So this would be speed in what, मीटर पर सेकंड. 60 से हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 60 हो जाएगा 10 टाइम्स, 10 by 5 is 2. So speed आ रही है मेरे पास डियर 2 मीटर पर सेकंड, बट हमसे किसमें पूछे, किलोमीटर पर आवर. सो डियर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद 18 by 5. सो स्पीड अपने पास हो जाएगा 2 into 18 by 5 कर देंगे, दिस स्पीड विल कम टू किलोमीटर पर आवर. ओके 18 into 2 is you can say 36 and 36 by 5 हो जाएगा अपने पास कितना, 7.2 किलोमीटर पर आवर. So we can say option B is our correct choice. You can say 7.2 kilometer per hour is the speed of person. Okay. Next question number 28. Question 28 guys अपने पास given है, if a car travels at a constant speed of 55 miles per hour. You can say speed अपने पास given है 55 miles per hour.
we have to answer how long will it take to cover a distance of 165 miles. 165 माइल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा. सो ये डिस्टेंस है डियर, और ये अपने पास स्पीड. सो टाइम क्या होता है डियर? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड. वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन, हाँ सॉरी, डिस्टेंस हो जाएगा 165, स्पीड है अपने पास 55, सो दैट वुड बी अवर 3 आवर्स. सो यू कैन से द कार विल टेक 3 आवर्स टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस. दैट्स योर ऑप्शन बी. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 29 के ऊपर. वी हैव टू फाइंड व्हाट गोना कम एट दिस क्वेश्चन मार्क प्लेस. नेक्स्ट अपने पास क्या होगा डियर? सीरीज इनकम्प्लीट करना है. सो डियर लेट्स चेक दिस सीरीज. वी आर गिवन 2 to 4 एडिशन ऑफ 2 का और है, 4 to 7 एडिशन ऑफ 3, 7 to 14. सर ये तो डबल हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीपल कर रहे हैं. नेक्स्ट 14 to 17 प्लस 3 हो रहा है, 17 to 34. सर ये डबल हो रहा है. सो ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आई गेस यहाँ पे एडिशन था या मल्टीप्लीकेशन है? यहाँ पे यू कैसे ऊपर मल्टीप्लीकेशन एडिशन हो रहा है, और यू कैसे गाइस यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो काम हो जाता. बट वी नो डियर 2 + 2 is 4, 2 into 2 is what? It is also 4. सो डियर ये पैटर्न क्या हो जाएगा? पहले हम नंबर को डबल करेंगे, फर्स्ट नंबर इज डबल्ड इंटू 2, एंड देन फिर उसमें डियर 3 का एडिशन, फिर डबल करेंगे, फिर 3 का एडिशन, फिर डबल. सो डियर नेक्स्ट क्या होगा? सो एडिशन ऑफ 3, द नंबर वुड बी 37. क्लियर? एंड नेक्स्ट नंबर पूछेगा, सो डियर वी गोना डू द डबल. 37 का डबल हो जाएगा अपने पास, दैट वुड बी आवर 74. ओके, एंड सो ऑन वी कैन टेक आउट ऑल द नंबर्स, बट यू कैसे अभी नहीं पूछे, यू कैसे 37 वुड बी आवर करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन 30 अपने पास आंसर करना है गाइस. वी हैव टू आंसर द करेक्ट रिलेशन, जस्ट लाइक कोकोनट इज टू शेल, देन लेटर इज टू व्हाट. सो डियर कोकोनट किसके अंदर होता है? कोकोनट लाइज इन द सेल. Similarly guys, letter lies in what? Mail? No, guys, no. It lies in the envelope. You can say when we mail a letter, we send it inside an envelope. Just like coconut is inside the shell. So similarly, letter is inside the envelope. Okay? So you can say option अपने पास क्या हो जाएगा? Option A would be the correct answer here. So thank you students. This was it for today's video. I hope you find the video informative and helpful guys. So make sure like the video guys and subscribe the channel and share करो सब वीडियो को guys सभी friends के साथ who are preparing for Maharashtra CET next year. Okay, and guys do remember for the batches links are given in the description, so kindly check the description box. Okay, चलो thank you students.